Hello, myself Jaivir Shah. I'm assistant professor at Virayathan Institute of Engineering in Mechanical Engineering Department. Also a patent agent, a YouTuber, an influencer, B mechanical, ME automobile and PhD pursuing candidate. So in this lecture we are going to discuss about requirement of diesel fuel as well as the characteristics of the CI engine fuels. These are the two different topics and we are going to study it in English and some portion. When I am unable to explain something in English, then at that time by default I am using the second language as a Hindi. So थोड़ा सा हम हिंदी में समझेंगे और ज़्यादा हम इंग्लिश में समझेंगे. So let's begin this lecture with the point number 1, that is requirement of diesel fuel. We all know the diesel fuel is required for any better economy. Means this fuel indicates or this fuel denotes the king of fuel, because the current automobile economy is known as diesel economy. Majority of the automobiles are running on a diesel vehicle. Why? Because diesel is having high power on a similar volume as compared to petrol. What it means? It means if you are running on an engine which having the same dimension, this is engine number 1, and with the same dimension, if you are having the another engine, this is called engine number 2, and if a first engine is running on petrol and second engine is running on diesel, then you are getting more amount of power for the same amount of or same volume of engine in case of diesel as compared to petrol. Why it is so? Have you thought about it? Please try to find out this answer, and if you are unable to find out this answer, then I will explain it to you. Also, another two interesting question I am putting in front of you. That first question is, what happens in case of SI engine? That when air and fuel mixtures enter inside the engine and it will burn homogeneously. Means it is called homogeneous mixture of air and fuel, air and petrol, which is inserted inside the intake manifold, and then it will burn by using spark plug. So why it is not possible in case of diesel engine to insert it in a homogeneous mixture? Means why we are not implementing diesel and air mixture in a homogeneous manner and insert it through carburetor, so that the diesel can be similarly burned as petrol is burning. If you are having answer, please write it down in the comment section. If you are not having any answer, then I will request you to find such kind of answer through the Google. Try to use your brain, try to think about it. What it will do, it will make this subject easier for you. जिनको मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उनके लिए हिंदी में बता दूं मैं क्वेश्चन. ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पेट्रोल इंजन में हम क्या करते हैं? पेट्रोल इंजन के अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं जिसे हम, क्योंकि एयर भी गैसियस फॉर्म में है एंड फ्यूल भी हम गैसियस फॉर्म में, पेट्रोल को गैसियस फॉर्म में वेपोराइज करके अंदर डाला जा सकता है. तो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर को हम वेपोराइज करके अंदर डाल देते हैं. किसके अंदर? इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर. और इनटेक मैनिफोल्ड में क्या होता है? स्पार्क जनरेट होता है एंड कंबशन टेक प्लेस. तो ऐसा ही हम डीजल इंजन में क्यों नहीं करते हैं? डीजल इंजन में भी तो हम डीजल फ्यूल को भी थोड़ा सा गर्म करके उसको भी वेपराइज करके यहां पर डाला जा सकता है. नहीं डाला जा सकता है? क्यों नहीं डाला जा सकता है? अगर डाला जा सकता है तो एयर फ्यूल मिक्सचर
और डीजल इंजन के अंदर कार्बोरेटर का यूज करके डीजल एंड एयर का मिक्सचर इनटेक मैनिफोल्ड में लगाकर और डालकर स्पार्क से क्यों इग्नाइट नहीं किया जाता है, ये आंसर चाहिए। अब ये आंसर क्यों चाहिए? क्योंकि हम सारी चीजों को समझ पाए, क्योंकि जितना आप आंसर, अगर क्वेश्चन ही नहीं पता होगा ना, तो अगर आप सर्च भी नहीं करेंगे ऑनलाइन कुछ भी, तो आंसर आपको पता चल पाए और एक आंसर पढ़ेंगे ना इस ओरिएंटेशन से कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता लगाना है कि पेट्रोल इंजन में डीजल क्यों नहीं डाला जाता है और डीजल इंजन में पेट्रोल क्यों नहीं डाला जाता है। ये क्वेश्चन सभी को होते हैं, बट इसके अगर परफेक्ट आंसर अगर आप ढूंढने निकलेंगे और आपके पास 2-3 गूगल सर्च के रिजल्ट सिमिलर आ जाए, तो यू विल गेट कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट सच कॉन्फिडेंट दैट कि भाई मैंने जो आंसर ढूंढा है वो सही है। एंड देन इनडायरेक्टली आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाएगी जिससे आप ये तय कर पाएंगे कि ओके वाटर क्या लिखा है, सिलेंडर टेम्परेचर क्या लिखा है, आईसी इंजन सब्जेक्ट क्या है। तो इसीलिए 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे आपसे, उसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। अगर आपको पता है तो अभी दे दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो पहले सर्च कीजिए गूगल पे और लिंक के साथ आपका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। चलिए, ये तो रहा आज का होमवर्क, बट अभी हम देखते हैं कि आज का पहले लेसन क्या है। दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ डीजल फ्यूल। So first thing is water. What is the water? What do you mean by water? So here water is the diesel fuel must not mix with water, because we are knowing that diesel fuel कैसा fuel है, वो volatile नहीं है, वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वेपराइज फॉर्म में नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड फॉर्म के अंदर अगर वाटर उसके अंदर मिक्स हो गया तो क्या होगा? वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। Oxygen atom will boost the combustion, but hydrogen atom is very much dangerous as a fuel if it is enter inside the IC engine. So that's why emulsification with water is not desirable, or diesel must not emulsified with water. That is the meaning. It should free from water and sediments. Otherwise, change the injection system. Okay. So it must free from water and sediments. Second thing is, it must be volatile at the cylinder temperature. ये सेकंड पॉइंट है, यही थोड़ा सा आपके लिए आंसर है। इट मस्ट बी volatile at cylinder temperature. सिलेंडर के अंदर जब डीजल फ्यूल आएगा तो वो वोलेटाइल हो जाना चाहिए। वोलेटाइल होना चाहिए मींस सिलेंडर का टेम्परेचर अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीजल फ्यूल को वेपोराइज हो जाना है, गैसियस फॉर्म में आ जाना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। ओके, थर्ड पॉइंट इज, if we are considering the third point, that is LSI. What it means? It should have low self ignition temperature. Low self ignition temperature means what? Self ignition means it will ignite by itself, and temperature means temperature at which it will ignite itself. So if the self ignition temperature is low, then and then the fuel can be vaporized easily and homogeneous mixture can be generated after the fuel injected through the injector inside the combustion chamber. The sulfur content, as we have discussed already in case of petrol fuel, that sulfur content will create corrosion if it is present inside the engine after combustion taking place or before combustion taking place. So sulfur content must be reduced lower than 0.5 percentage in case of diesel engine. So this point is sulfur content. Okay, then
ing means lesser time for ignition. So if it will take more time for ignition, then what will happen? पिकअप नहीं मिलेगी गाड़ी को. हम कहते हैं ना कि पेट्रोल गाड़ी की पिकअप डीजल गाड़ी से अच्छी होती है. वाई? बिकॉज पेट्रोल ऑलरेडी वेपर फॉर्म में है, एयर भी वेपर फॉर्म में है, खाना तैयार है, खा लो भाई. इंजन को स्पार्क करो और इंजन इग्नाइट हो जाएगा, कंबशन टेक प्लेस एंड इंजन गेट्स एनर्जी. बट डीजल इंजन में नहीं है ऐसा. डीजल इंजन में खाना बनता है पहले. आप जाओगे होटल में ऑर्डर दोगे, फिर खाना बनेगा और फिर जाके आप खाओगे. इट मींस फ्यूल पहले लिक्विड फॉर्म में रहता है, फिर इंजेक्टर के थ्रू सिलेंडर में वो इंजेक्ट किया जाता है, देन एयर कंप्रेशन की वजह से वो कंबशन होता है, एंड देन द कंप्लीट इग्निशन इज टेकिंग प्लेस. सो दैट्स व्हाई it will take some time, but the desirable property or the requirement of the diesel fuel is such that it will minimize such kind of time. So if we are able to minimize such kind of time, then it will be really good. So if you are planning for some research, तो diesel engine पे अगर आप ऐसा research करें कि diesel fuel engine कंबशन चेंबर में पहुंचने से पहले ही वेपराइज हो जाए, अगर आप ऐसी कोई सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम बना पाए, सो दैट विल बी दी रियली अ वंडरफुल रिसर्च फॉर यू. ओके, देन नेक्स्ट वन इज इजीली एटोमाइज. इजीली एटोमाइज्ड मींस जब भी इंजेक्टर में से छोटे छोटे एटम्स, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, तो वो इजीली एटोमाइज होना चाहिए. आपको मैं बता दूं कि जो इंजेक्टर का प्रेशर होता है दैट इज 110 बार और समथिंग अराउंड इट. इट मींस 100 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल प्रेशर कंडीशन इन द एनवायरमेंट. तो उतने प्रेशर पे वो एटोमाइज होते हैं. एटोमाइज होने का मतलब है छोटे छोटे एटम्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. तो एटोमाइज होने की वजह से जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं, वो ड्रॉपलेट्स की पूरी एरिया पे एयर रहती है और वो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, क्योंकि फ्यूल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. तो अगर ये छोटे छोटे एटोमाइज ड्रॉपलेट बन जाएंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा. देखिए, जैसे कि मैं ऐसा कहूं कि ये फ्यूल का एक इंजेक्टर के अंदर से एक जेट निकला तो कहां से एयर उनको कांटेक्ट कर पाएगी? यही एरिया पे कांटेक्ट कर पाएगी. मगर अगर इसी जेट को मैं एटोमाइज कर दूं छोटे छोटे एटम्स में, तो एयर सभी जगह से कांटेक्ट कर पाएगी. अब आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि फ्यूल को कंप्लीटली कंबशन होने के लिए अगर वो जितना एटोमाइज होगा उतना ही कंप्लीट कंबशन के चांसेस ज्यादा बनेंगे, उतनी ही हमें इकोनॉमी ज्यादा मिलेगी, उतना ही हम अच्छी तरीके से एवरेज निकाल पाएंगे. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज high heating value. That is also desirable property in case of petrol engine and in case of diesel engine also. High heating value means किलोजूल पर केजी कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए. इट मीन्स पर केजी फ्यूल में जितनी एनर्जी ऑब्टेन हो पा रही है, the energy which is produced per kg of fuel, that must be high. It must not produce any corrosion. That is the most requirement for any fuel or any chemical which is inserted inside the IC engine, because if it generates corrosion, then it will corrode the parts of the internal combustion engine, and that is not desirable. It should not generate any gum particle. Means highly viscous fuel is created after certain deposits are available inside the engine. कुछ समय गाड़ी चलाने के बाद जो कार्बन डिपॉजिट्स या थोड़े से जो एग्जॉस्ट एमिशन के बाद जो बच जाते हैं पर्टिकुलर मेटर्स एंड सल्फर कंटेंट्स, उनके साथ रिएक्ट करके डीजल के ड्रॉपलेट्स एक गम बना लेते हैं. गम बनाना यानी हाईली विस्कस फ्यूल बनाना. आप ऐसा समझ लीजिए कि एक ऑयल बना लेते हैं. तो वो ऑयल बनना नहीं चाहिए. दैट इज द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डीजल फ्यूल और रिक्वायरमेंट ऑफ द
डीजल फ्यूल। अगर ये गम बनेगा तो गम पिस्टन रिग्स को भी तोड़ देगा, क्योंकि वहां पर ही पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो जगह होती है वहां पर ही गम फिक्स होते हैं, उसको भी तोड़ देगा। और उसको तोड़ने की वजह से एक तो इंजन की लाइफ खराब होगी, उसके साथ साथ ये कोरोजन भी क्रिएट करता है। ओके, इजी टू हैंडल, मोस्ट हैंडल, ओके हैंडल आप समझ गए ना, हैंडल, इजी टू हैंडल। डीजल फ्यूल इज much easier for handling purpose as compared to petrol fuel, because petrol is volatile in nature in normal temperature and pressure condition, but diesel is not a volatile in nature in case of normal pressure and temperature condition, and economically available. The most powerful point about diesel fuel is it is economically available as compared to petrol. But nowadays it is not like that. You are having the similar prices of petrol and diesel, but that is also good for the upcoming days, because as the government promotes the electrical vehicles, that is really good, and it will generate lesser emission if we are going to produce energy, electrical energy, by using non-conventional energy sources. And many big distributors or big companies are working on it, like Suzlon and Adani and many more, Nissan and many more companies are working on wind power energy, solar power energy. So hopefully the electrical vehicle will definitely reduce the future emission coming out from the automobile, and it will definitely helpful for the human life in future. Okay, now second point, characteristics of the CI engine fuel. As I already discussed in case of SI engine fuel, I am again correcting you. Do not confuse yourself between characteristics and requirement. See, the first title is requirement of diesel fuel, so we are particularly talking about diesel fuel, and now we are discussing about characteristics of the CI engine fuel. So if you are using any fuel like petrol, diesel, kerosene, ethanol, methanol, butanol, any fuel, if you are using as an CI engine fuel, then what kind of characteristics it must possess? That's talking we are, that conversation we are going through in this topic. So the first point is volatility. It must be volatile in nature in terms of cylinder temperature. It must volatile at a cylinder temperature, but it must not volatile during handling purpose. So in the normal temperature and pressure condition it must not volatile, but at the time of cylinder temperature it must volatile, तो वो गैस बन पाए और एम्बिशन हो पाए, कंबशन हो पाए। मगर जब हैंडलिंग की बात आती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, वो वोलाटाइल नहीं होना चाहिए, वरना होगा क्या, टंकी थोड़ी सी भी खुली रह गई तो पूरा पेट्रोल निकल जाता है, मगर डीजल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, सेकंड वन इज ignition quality. See, ignition quality is defined, अब जब हम कंबशन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तो इग्निशन क्वालिटी के दो फेज रहेंगे, इग्निशन लेग एंड इग्निशन टाइम। सो इग्निशन लेग का मीनिंग हुआ कि जो मिक्सचर प्रिपेयर करने में जो टाइम लगता है दैट इज द इग्निशन लेग। जो अक्सर देखा जाता है सीआई इंजन में, जैसे कि डीजल फ्यूल यूज हो रहा है, तो डीजल फ्यूल क्या होता है कि उनको इग्निशन करने में टाइम लगता है, दैट्स व्हाई एक गाड़ी की पिकअप कम हो जाती है। तो इग्निशन क्वालिटी मस्ट बी बेटर, इट मस्ट लाइक पेट्रोल इंजन, बट दैट इज अ लिमिटेशन। अब आप सोचेंगे कि सर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप कभी बोल रहे हैं पेट्रोल, कभी बोल रहे हैं डीजल। जी मैं यही बोल रहा हूं कि सीआई इंजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए सीआई इंजन फ्यूल की, कि वो जल्दी से इग्नाइट हो जाए, पेट्रोल के जैसा इग्नाइट हो जाए, और डीजल की जैसी उसकी वॉलेटिलिटी हो, यानी इजी टू हैंडल भी हो। तो ये कोई भी फ्यूल के लिए हम बात कर रहे हैं, कोई और तीसरे फ्यूल के लिए अगर आप ढूंढोगे, कभी आप इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर कोई इनोवेशन करेंगे, तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रख के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीआई इंजन फ्यूल सोचना चाहिए, उसके बारे में बात है। C10 नंबर, इस पे तो हम डिटेल में बात करेंगे। C10 नंबर अभी आप समझ लीजिए कि C10 नंबर इन टर्म्स ऑफ डीजल इंजन एंड ऑक्टेन नंबर इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल इंजन, वो
किसको रिप्रेजेंट करते हैं? C10 नंबर और ऑक्टेन नंबर जितने ज्यादा रहेंगे उतना ही, जितना अच्छा रहेगा उतना ही इंजन में नॉकिंग, डिटोनेशन एंड प्री इग्निशन कम होंगे। ये सिंपल सा मीनिंग निकाल लीजिए अभी। ओके, देन SG स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जितनी ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा, जितनी डेंसिटी ज्यादा उतना ही पर वॉल्यूम, यानी अगर हम जितना वॉल्यूम है हमारे इंजन का उतना ही हम ज्यादा पावर या ज्यादा फ्यूल वहां पर ऐड कर सकते हैं और ज्यादा पावर वहां से निकाल सकते हैं। सो इट इज बेसिकली, अगर पैसेंजर कार है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि डेंसिटी कम होनी चाहिए ताकि वो इजीली चल पाए। मगर इन जनरल रिक्वायरमेंट अगर हम देखें कि जहां पर हमें पावर का यूज करना है, जैसे कि बुलडोजर है, जैसे कि ट्रक है, जैसे कि टेम्पो है, जहां पर हमें बहुत सारा लोड लेके जाना है, बहुत सारी केजी ऑफ वेट लेके जाना है, तो उस केस में हमारे पास डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होनी चाहिए ताकि कम एरिया में कम वॉल्यूम में ज्यादा फ्यूल आ सके और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके। देन हीट ऑफ कंबशन। what it will do, heat of combustion. so heat of combustion के अंदर जो हीट जनरेट होती है ड्यू टू कंबशन, दैट मस्ट बी कंज्यूम बाय द वाटर जैकेट। एक फ्यूल के बाहर एक वाटर जैकेट भी रहता है और हीट ऑफ द कंबशन वो कंज्यूम कर लेता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब फ्यूल एंटर हो तब फ्यूल वापस सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेंड ना कर पाए और डिटोनेशन एंड नॉकिंग फिनोमिना से बचा जाए। देन विस्कोसिटी। इट मस्ट नॉट हाईली विस्कस, मींस लेस विस्कस होना चाहिए ताकि गम पार्टिकल्स प्रोड्यूस ना कर पाए, ताकि वो ज्यादा सरफेस के साथ रिएक्शन ना कर पाए। अगर विस्कस होगा तो कहीं पे चिपक जाएगा तो कोरोजन भी हो सकता है और टेम्परेचर इंजन लाइफ को भी रिड्यूस कर सकता है। फ्लैश एंड फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट ये होता है कि कितना जल्दी वो छोटी सी एक फ्लेम दे दे, कितने टेम्परेचर पे वो छोटी सी फ्लेम दे रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। फ्लेम दे के बंद हो जाए और अगर वही फ्लेम को वो सस्टेन कर रहा है फॉर 5 सेकंड और मोर देन दैट, दैट इज कॉल्ड फायर पॉइंट। तो फायर पॉइंट हम कहें कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीआई इंजन फ्यूल क्या कहता है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट उसका कम होना चाहिए ताकि वो ज्यादा जल्दी से वोलेटाइल हो पाए, वेपर बन पाए और जल्दी से हमारा कंबशन स्टार्ट हो जाए। ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सल्फर कंटेंट। again sulfur content, as we have discussed in case of diesel fuel, that sulfur content must be less than 0.5 percentage because due to sulfur content corrosion is taking place. And last but not the least, that is cleanliness. So this cleanliness is defined from the petroleums, जहां से ये जनरेट होते हैं तो वहां से ये क्लीन, इन क्लीन नेचर में आना चाहिए। अगर क्लीन नेचर में नहीं आया, इसके अंदर सेडिमेंट्स है या वाटर इमल्सिफाइड है, तो फिर यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स के चार्जेस रहते हैं। इसीलिए बार बार हम पेट्रोल पंप पे जाके ही डीजल या पेट्रोल भरवा लेते हैं और कहीं से आपको नहीं भरवाना चाहिए बिकॉज देर आर सो मेनी फिल्टर्स विच आर अवेलेबल विद इन दैट एंड ड्यू टू सच फिल्टर्स द लाइफ ऑफ द engine as well as life of the person is justifiable or is in a safe manner. तो ये रहा आज का डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा है तो किस तरीके से मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को, उसके बारे में मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपकी कमेंट को देख के अपने आप को चेंज कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।